जेनेसिस 15, 16, 17 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर बाद में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, ये वचन हम सीखना चाहते, समझना चाहते। आपके बिना इस वचन की कोई भी बात हमारी समझ में नहीं उतरेगी और आपके अनुग्रह के बिना हम उसे स्वीकार भी नहीं सकेंगे। हमारा मन इस वचन के अंदर बना नहीं रह पाएगा। हमें मदद कीजिए पवित्र आत्मा, हमें आज्ञा पालन में बढ़ाइए और वचन के अधीन रखिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 15। God encouraged Abram, promised him a son and a numerous seed. He is justified by faith. Canaan is again promised and confirmed by a sign and a vision. First verse से पढ़ेंगे 15 chapter first verse. After these things the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit it. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? And he said unto him, Take me an heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. And he took unto him all this, and divided them in the midst, and laid each piece one against another. But the birds divided he not. And when the fowls came down upon the carcasses, Abram drove them away. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and lo, an horror of great darkness fell upon him. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. And thou shalt go to thy fathers in peace. Thou shalt be buried in a good old age. But in the 4th generation they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. And it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. In the same day the Lord made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates, the Kenites and the Kenizzites, and the Kadmonites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims, and the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites. Chapter 16. Sarai, being barren, giveth Hagar to Abram. Hagar fleeth from her mistress, is sent back by an angel to submit to her. Ishmael is born. First verse. And now Sarai, Abram's wife, bare him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarai said unto Abram,
behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. And Sarai said unto Abram, my wrong be upon thee. I have given my maid into thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge between me and thee. But Abram said unto Sarai, behold, thy maid is in thy hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. And he said, Hagar, Sarai's maid, whence comest thou, and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. And the angel of the Lord said unto her, return to thy mistress, and submit thyself under her hands. And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. And the angel of the Lord said unto her, behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. And he will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his brethren. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. For she said, have I also here looked after him that seeth me? Wherefore the well was called Bir Lahai Roi. Bir Lahai Roi. Behold, it is between Kadesh and Bered. And Hagar bare Abram a son, and Abram called his son's name, which Hagar bare, Ishmael. And Abram was 86 old when Hagar bare Ishmael to Abram. Chapter 17. The covenant is renewed. Abram's name changed. Circumcision instituted. Isaac with a numerous issue is promised. First verse से पढ़ेंगे chapter 17 first verse. And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant which ye shall keep
between me and you, and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house or bought with money of any stranger which is not of thy seed, he that is born in thy house, and he that is bought with thy money must needs be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised man child, whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. And I will bless her, and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? And Abraham said unto God, Oh, that Ishmael might live before thee. And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. And as for Ishmael, I have heard thee. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. 12 princes shall he beget, and I will make him a great nation. But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. And he left off talking with him, and God went up from Abraham. And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the self same day, as God had said unto him. And Abraham was 90 years old and 9, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. And Ishmael his son was 13 years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. In the self same day was Abraham circumcised, and Ishmael his son. And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him. हम पढ़ेंगे हिंदी में बीएसआई बाइबल में से उत्पत्ति 15, 16, 17 अध्याय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे उत्पत्ति 15, 16, 17 अध्याय। 15 अध्याय। अब्राम के साथ यहोवा की वाचा बांधने का वर्णन। 15 अध्याय पहले वचन से। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की
ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। हाजिरा और उसका पुत्र इश्माएल। 16 अध्याय पहले वचन से। अब्राम की पत्नी सारै की कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारै ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारै की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारै ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ।
यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनैले गदहे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अताएल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहे रोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेद के बीच में है। हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। वाचा का चिन्ह खतना 17 अध्याय पहले वचन से। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश, जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा, जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा, जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा। हालेलुया। ध्यान रखो इस बात को, बहुत गहराई से इसको ध्यान रखो। इस प्रकार, हालेलुया, इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। परमेश्वर देह के अंदर चिन्ह ठपकाता है और डिक्लेयर करता है कि ये मनुष्य जाति अब ये मेरी है। हालेलुया। ध्यान रखना इस बात को कि जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए।
समझ में आया आपको? मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं किया था, और जब मूसा अपने बच्चे और पत्नी को लेकर मिस्र में जा रहा था परमेश्वर की वाणी सुन के, तब उसके बेटे को मारा। ओके, स्वर्गदूत मारने के लिए आया, नष्ट करने के लिए आया। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या था, उस बेटे का खतना नहीं हुआ था इसकी वजह से। ठीक है, तो ये वाचा है, ये परमेश्वर का वाचा है। ओके, और वाचा के साथ देह के अंदर परमेश्वर ने चिन्ह लगाने के लिए बोला। यानी परमेश्वर सब मनुष्यों को मेरा मनुष्य नहीं कहता है, परमेश्वर उसके बेनिफिट्स देना चाहता है जिनको, उनके शरीर को भी वो एक सिग्नल साइन रखता है, चिन्ह रखता है। ओके, तो आपके हमारे शरीर के ऊपर यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान का चिन्ह लगा हुआ है। ओके, क्रूस के बलिदान का चिन्ह लगा हुआ है, और इसके लिए शैतान हमारे शरीर को उसके कोई भी हिस्से में नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रूस के बलिदान का चिन्ह लग चुका है, और वो पवित्र आत्मा उस चिन्ह की गवाही है। ओके, सील करता है, उस चिन्ह को हमारे अंदर सुरक्षित रखता है। हालेलुया। तो इसके लिए कभी भी अपने शरीर, प्राण, आत्मा को ऐरा गैरा नहीं समझना है। हम परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर का वाचा यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह का वाचा परमेश्वर के साथ जो है वो हमारे अंदर अब रह रहा है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के इतने पर्सनल प्रॉपर्टी है, शैतान का कोई बस नहीं चलेगा हमारे ऊपर, कोई नहीं, कोई उसकी कोई ताकत, कोई बस, कुछ नहीं चलेगा हमारे ऊपर वो। और दूसरा कुछ भी मार्किंग हमारे शरीर को, प्राण को, आत्मा को नहीं दे सकता है। कोई मार्किंग नहीं दे सकता है, उसका कोई भी अधिकार नहीं है मार्किंग लगाने का। ओके, एकदम निश्चिंत हो जाते हैं हम जब परमेश्वर में हम उद्धार पा लेते हैं। हालेलुया। देखो यहाँ पे 14 वचन, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसके खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। देखो, परमेश्वर का स्वर्गदूत मूसा के बेटे को मार डालने के लिए दौड़ के आया था। ओके, उसको मार डालने के लिए आया था। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत परवाह नहीं करता है आप मसीह हो या नहीं हो। ओके, अगर आप परमेश्वर का जो वाचा है उसके बाहर चले जाते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके बारे में केयर नहीं करता है। ओके, मतलब इस प्रकार से है, परमेश्वर का स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर के बाउंड्री के अंदर रहने वालों के लिए है। ओके, वो आप बाउंड्री छोड़कर बाहर जाते हैं तो वो जिम्मेदारी नहीं उठाता है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, प्राणों को नष्ट किया जाए, इसके लिए वो स्वर्गदूत मूसा के बेटे को नष्ट करने के लिए दौड़ा। ओके, और ये है परमेश्वर जो बोला है वही को स्वर्गदूत पूरा करते हैं, ऐरे गहरे काम नहीं करते हैं वो। ओके, सिर्फ जो परमेश्वर बोला उसी को वो पूरा करते हैं। आमीन। यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तेरी जो पत्नी सारई है उसको तू अब सारई न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। देखिए, सारा को ऐसी आशीष दी कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। ये परमेश्वर ने उसको दिया हुआ पोजीशन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ओके, जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हव्वा नाम आदम ने इसीलिए दिया था क्योंकि उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हव्वा के बारे में आदम ने हव्वा नाम दिया था क्योंकि वह 3 अध्याय में हमने पढ़ा था उसको।
अम, रिबांतिखम्ब उसी हिल रहा असास्किन बरहा असिस्किन बरहा अश्कर खस। हाँ देखिए, ये लिखा था 20 वचन में है ये, 3 अध्याय के 20 वचन में। क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। आदि माता, आदि माता ऐसा नाम दिया। हव्वा का मतलब है आदि माता। ओके, और उत्पत्ति के हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या लिखा है, वह मूल माता हो जाएगी। सारा मूल माता हो जाएगी। ओके, क्या दिया है, मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जब उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं तो फलो फूलो आशीष किया परमेश्वर ने। नूह के समय भी जब वो नाव के बाहर आया था तो उसको आशीष किया परमेश्वर ने। ओके, अब यहाँ पे साराई को आशीष किया। ओके, उसको आशीष किया। तो आशीष का मतलब है उनको परमिशन दिया है परमेश्वर ने। कोई एक एरिया ऑफ लाइफ में उनको कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए वचन ऐसा कहता है, जिसको आशीष दिया परमेश्वर ने उसको कौन श्रापित कर सकता है? कोई नहीं। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आशीष दिया तो उसको कोई श्रापित नहीं कर सकता है। आमीन। तो आप और मैं, हमारी मूल माता हमें सारा है ना। मूल पिता, विश्वास का पिता हमारे लिए अब्राहम है, और मूल माता हमारे लिए सारा है, और इसको परमेश्वर ने आशीष दिया है। ओके, तो ये आशीष होने के बाद में अब कोई श्राप हमारे ऊपर रुक नहीं सकता है। हालेलुया। और देखिए यहाँ पे क्या है, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। देखो देखो, असंभव है शारीरिक दृष्टि से। ओके, हमारे कुछ फिजिकल इतने सारे टेढ़े हो चुके रास्ते हो जाते हैं कि हमको उसको सीधे होते हुए समझना मुश्किल हो जाता है। हमको ऐसा लगता है ये कभी भी संभव नहीं है, फिजिकली इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। ओके, फिजिकली ये ऐसे ही टूटा फूटा जीवन रहेगा, ऐसा लगता है हमको। ओके, लेकिन परमेश्वर फिजिकली बात कर रहा है कि फिजिकली वो कह रहा है, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखेगा, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। उसके पश्चात मतलब उसके बाद आने वाले वंश में भी परमेश्वर कहता है युग युग के लिए वो वाचा रहेगी। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा। देखो, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको मालूम नहीं रहता है कि क्यों परमेश्वर ने हगार को वो पानी के बिना वो इश्माइल मर रहा था, है ना। उस समय वो क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उसको पानी दिलाया और जीवित रखा। ओके, तो क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? क्योंकि अब्राहम प्रार्थना करता था परमेश्वर से उसके बारे में। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट है। हम जब प्रार्थना करते हैं किसी के बारे में तो शायद से किसी को मालूम नहीं, हम सीक्रेटली किसके लिए बहुत सीरियसली कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से, क्योंकि वो हमारी चिंता का विषय है। हालेलुया। तब भी परमेश्वर कहता है, उस इतनी एकांत में तूने मांगी हुई प्रार्थना को भी मैंने सुन लिया है।
और उस प्रार्थना का भी परमेश्वर कहता है कि मैं उसको भी आशीष दूंगा। अब उसने क्या मांगा था? यही मांगा था कि वो भी आशीषित हो जाए, और उसको भी फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। हालेलुया। देखो, वाचा के विषय में सीरियस है परमेश्वर। ओके, ब्लेसिंग्स के विषय में परमेश्वर किसी को भी ब्लेस करेगा, लेकिन वाचा के बारे में, इसके लिए हम बोलते हैं पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, ये बहुत सीरियस इशू है, सीरियस मसला है परमेश्वर के सामने। ओके, अगर कुरनेलियुस दान अर्पण सब कुछ कर रहा था और परमेश्वर का मन उसके प्रति खुश था, तो भी परमेश्वर ने एक्सक्यूज नहीं दिया उसको पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने का इंतजाम लगा दिया। पतरस को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा, पतरस को सुनाया, पतरस को दर्शन दिया, पतरस को भेजा, वहां लोग उद्धार पाए। ओके, खोजा अकेले जा रहा था, यशायाह की पुस्तक पढ़ता हुआ मंदिर से होकर लौट रहा था, और वहां पर फिलिप्पुस को भेजा, फिलिप्पुस ने सिखाया, फिलिप्पुस ने उसको पानी का बपतिस्मा लेने में सहायता किया। परमेश्वर वाचा के बारे में बहुत ज्यादा कड़क है भाई। ओके बहन, बहुत कड़क है। अगर आप परमेश्वर के संतान नहीं है तो आशीष के माहौल में आप ये मत कहो कि परमेश्वर आपके तरफ से है, नहीं। ओके, ये बहुत बहुत गलत है। ओके, वाचा है प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर का वाचा है। उस वाचा के अंदर जो कंडीशन से आपको मानना पड़ेगा। जब मूसा के बेटे का खतना नहीं हुआ था तो स्वर्गदूत उसको खत्म करने के लिए दौड़ा था। ओके, तो अब्राहम के घराने, मतलब जो लोग थे, उनके बीच में अगर खतना किया हुआ नहीं रहेगा तो उसको नाश करने के लिए परमेश्वर ने कहा। ओके, तो परमेश्वर ने उन सब कुछ को नाश होने की आज्ञा लगा दी है जो प्रभु यीशु के अंदर अपने आप को नहीं लाएंगे। सब कुछ नाश के सामने रख दिया जाएगा। ओके, समझ में आया? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इतना ही नहीं, स्वर्ग की सेना, प्रभु परमेश्वर की स्वर्गदूत ने मूसा के बेटे को नहीं छोड़ा क्योंकि उसका खतना नहीं था। ओके, तो इसका मतलब क्या बनता है कि उसने इंतजार किया खतना करने का, लेकिन वो समय में किया नहीं, उसको मारने के लिए आया स्वर्गदूत। ओके, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, परमेश्वर ने कहा नाश कर देना है उसका। ओके, तो मूसा के अंदर ऐसा पुत्र पाया गया तो उसको नाश करने के लिए स्वर्गदूत दौड़ के आया। यानी परमेश्वर के स्वर्ग की सेना भी आपको बचा नहीं सकती है अगर आप यीशु के बाहर ही जीवन जियोगे और धोखा खाते रहोगे कि हम तो मसीह है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर वाचा के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आमीन। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माएल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपये से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इश्माएल को खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। ठीक है, तो इसके लिए जब परमेश्वर इसहाक देने का समय नजदीक पहुंचा था, 1 साल सिर्फ बाकी रह गया था,
तभी परमेश्वर ने उसके पहले अब्राहम और सबको खतना करवाया। ओके, और वो पूरा इकट्ठा करके उसके वाचा के अंदर, कंडीशन के अंदर उसको लेकर आया। हालेलुया। तो आपको और हमको बहुत बड़ा ध्यान रखना है, हम वाचा के अंदर प्रवेश कर चुके हुए लोग हैं, वाचा के बाहर नहीं। और अभी हम अन्य जातियों में नहीं है, अभी हम नाश होने वाले के हाथों में नहीं दिए जाएंगे। आमीन। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वाचा का हिस्सा बैठाया गया है, सील बैठाया गया है, चिन्ह लगाया गया है। हालेलुया। तो इसके लिए शैतानी जगत का क्षेत्र बहुत डिफरेंट है, मसीहियों का क्षेत्र बहुत डिफरेंट है। ओके, उनके क्षेत्र के कोई हथियार हम तक पहुंचना और हमारे क्षेत्र में से उनका नुकसान होना, ये सब कुछ वो पावरलेस है, हम पावरफुल है। हालेलुया। उनका कोई भी हथियार, कोई भी पावर आपको महसूस हो सकता है, आपको महसूस करा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट उनके हथियार आप तोड़कर गिरा सकते हो। इतनी ज्यादा सामर्थ्य जाति आप मसीही लोग हैं। ओके, शैतानी लोग नहीं। आमीन। इसकी वजह से वो जितना चाहे करे, आप तक उनके कोई हथियार पावरफुल नहीं है। ओके, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। ओके, आपको सच्चाई अगर मालूम नहीं है तो आपके अंदर का अविश्वास आपको मरवाता है। इसकी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। अगर आप खुद इस विषय को नहीं जानते हैं और फिर शैतान के कामों में आप देखते हैं, तो आपको लगता है वो लोग जीतेंगे, असंभव है। अगर ये वाचा आपको समझ में आया तो वाचा के कारण स्वर्ग का सेना हमारी ओर से है। समझ में आया? वाचा के कारण मूसा के बेटे को मारने के लिए स्वर्गदूत गया। ओके, वाचा के कारण परमेश्वर के स्वर्ग का सेना हमारी ओर से है। हालेलुया। इसकी वजह से जब शैतान के जगत के हमले हमारे ऊपर आते हैं तो उसको मुंह तोड़ जवाब देके उनको उतारना है, उनके शक्तियों में से उनको बाजू में कर देना है। ओके, वो इंसान से आपको कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो शक्तियां हैं उसको आप उतार के अलग करना है। समझ में आया? इसकी वजह से हमको ये सब कुछ मालूम होना चाहिए कि वो पावरलेस है, हम पावरफुल है। आमीन। इसके लिए आपको ये बात वाचा के बारे में बहुत गंभीरता से चलना है, क्योंकि हम वाचा के अंदर के लोग हैं, बाहर के नहीं है। आमीन। आपको आपका मसीह जीवन अर्थपूर्ण लगेगा जब आपको ये रहस्य, यह भेद आपको जब समझ में आता है ना, तब मसीही जीवन इंटरेस्टिंग लगेगा और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने में आपको आनंद आएगा। ओके, आप डिफिटेड फो नहीं है, हारे हुए नहीं है। हम परमेश्वर के खून के द्वारा हम उसके वाचा के अंदर प्रवेश किए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें इन सारी बातों के अंदर और ज्यादा सामर्थ्य सिखाए, यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हम 26 से आगे पढ़ेंगे। अब्राहम और उसके पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए थे, जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें आज का लेसन सिखाया, हमें परमेश्वर के करीब लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इतना ज़्यादा हमारे अंदर इतना परमेश्वर को इतना डीप 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 डाउन हमारे अंदर उसको लेकर आया, भर दिया, और हमें पूर्णता का, हमें सामर्थ्य, ऐसा आनंद दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। इस बात को हम कभी नहीं भूले कि हम वाचा के अंदर के और हम पर लगा हुआ चिन्ह परमेश्वर के जन कहलाने के लिए हम कभी ना भूले। खुदा परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता।
हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में हमको, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 7 चैप्टर 22 वर्स से 32 वर्स। नहमिया 10 चैप्टर। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 22 वचन से 32 वचन। नहमिया 10 अध्याय। हम अकेले में बैठकर पढ़ने का फैसला रखे हैं, क्योंकि हम अपने अंदर परमेश्वर को, अकेले में हमारे अंदर की बातों को परमेश्वर खोल के हमको बताए, हमारे समझ में आए और हमें सुधार लाए, परमेश्वर के वचनों की गहरे भेद हम स्वीकार सके। इसके लिए हम पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ने का फैसला रखा है। लेकिन हम जैसे भी पढ़े, जैसे आप हम चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। और हमारे साथ एक ही रहना चाहिए कि परमेश्वर के आत्मा ने हमको वचन सिखाना है और निश्चित करना है कि परमेश्वर के आत्मा की सहायता हम लेते हुए वचन सीखते जाए, और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें सहायता कर, हमें फिट एंड फिक्स कर, तेरे वचनों में हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।